Thank you very much for joining us. And those of you who don't know, Umair and I go back to 2008-9, or sometimes you say 10. So it's been good 11, 12 years of knowing you, Umair, both personally, professionally, working with you, learning from you. And some of my close friends, perhaps, they do know that you are responsible for bringing me to this field as well. So अब वो आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें जैसे भी करें, it's between you and them. So those of you who have joined us, I think we've got a good number. So far, 37 participants has joined and more will join us as well. Just to give a brief introduction about Umair. Umair is a almost 1.5 decade old learning and development professional. And he's working with the corporates, with the development sector, with the youth. I remember you were too young when you started with corporates, and you always refer to it as that you had a first mover advantage when you started as a trainer and in this industry, and then you left even the other youngsters behind as well. So we'll be sharing about that, asking you questions about that as well. But हमने जो कोविड के दिनों में सीखा या देखा, काफी हद तक डायनामिक्स चेंज हो गए, स्पेशली जब हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट में देखा. So those of you who can't hear Umair, let me tell you, Umair is not speaking. He's on mute. So I'm just giving an introduction. So please bear with me for 2-3 minutes and then he'll speak. So हमने कोविड के दिनों में उमेर देखा कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट वर्चुअल भी गई. सो पाकिस्तान में लर्निंग एंड डेवलपमेंट के डिफरेंट डायनामिक्स हैं, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट पर्सनली एज वेल. आई थिंक दिस इज नाउ चांस टू डिस्कस इट पब्लिकली as well. And it also brought some challenges while it brought some opportunities. I think the challenge, especially for the local market, was now instead of engaging you and me and other trainers, why don't they engage someone from abroad? So and has it changed or not? Because एक first wave आई, सब कुछ बंद हो गया, फिर खुला. So उसके बाद जो आपकी interventions रही हैं, engagement रही. So what has been your experience so far? So are we ready and good to go, Mayor? I'll give you floor for 2-3 minutes. So those of you who can't hear you can hear you, and then we'll start with the question answers. And everyone, you can type your questions on Facebook in the chat window, and we'll be taking your questions after 15-20 minutes of our discussion. Thank you, Ibrahim, and thank you, NIC, for having me. It's always wonderful to share experiences, और ऐसे मौजू पे बात करने का मौका कम मिलता है जो आप एज ए ट्रेनर अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस करते हैं. लर्निंग एंड डेवलपमेंट में तो बहुत शिफ्ट आया है. इब्राहिम, यू नो इट, वी नो इट, एवरीबडी हैज सीन इट. हमने अपने सोशल मीडिया पे देखा है, बहुत सारे एलीट ट्रेनर सामने आ गए, खुल गए, अपना कंटेंट खोल दिया. और इब्राहिम, तुमने जो आखिरी बात की कि अब इंटरनेशनल मुकाबला ही मुमकिन है, बल्कि आ गया है. आई वुड लाइक इन दिस, जो हमारा ये वक्त है, मैं उसमें अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहूंगा कि मुझे ट्रेंड्स और लोगों के जो काम हैं, उनकी जो डिस्टिंक्शन है, उसको मैंने कभी कंपटीशन नहीं समझा. फॉर मी लर्निंग एंड डेवलपमेंट केम लेटर एज अ जॉब और एज अ प्रोफेशन. इट केम अर्लीस्ट एज अ पैशन. और यही वजह है कि मेरे लिए सीखना सिखाना, खुद मेरा बहुत शौक है चीजें देखने का, सीखने का, तो वो मुसलसल चलता रहा. और जो मैं सीखता गया वो मैं सिखाता गया. तो अब करते करते 13 years डाउन द लाइन मुझे ये फील नहीं होती बहुत सारी बातें. लेकिन शायद मैं अब इस वजह से ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मैं इस टाइम में बहुत सारा काम समेट चुका हूँ, क्लाइंट्स के पास जा चुका हूँ. सो मे बी एज सून एज द मार्केट स्टार्टेड, जब मार्केट बंद भी हुई और जब फिर मार्केट अब लेट्स से दोबारा रिज्यूम भी हुई, तो काम जरूर आया. नौयत तो उसकी बदल गई है इब्राहिम. सीखना और सिखाना मकसद है, लोगों को बढ़ाना मकसद है. अगर लोगों को शामिल करना मकसद है तो ये शक्लें जरूरी नहीं है. When the student is ready, the master appears. And in today's times, we have amazing technologies. और अब मुझे ये 1.5 साल डिजिटली करा के ये फील होता है कि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे मुंह बंद करना चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए. लोगों को करने देना चाहिए. So I think it's been a blessing in disguise, COVID. मुझे नहीं लगता कि हम एज ट्रेनर्स और ट्रेनिंग इंडस्ट्री शिफ्ट करते अपने आप को इतना आईने में देखते जितना हमने इस छोटे से टाइम में कोरोना में देख लिया है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस डायलॉग, और मजा आएगा अगर सबके सवालात भी साथ शामिल हो, लाइक यू एनकरेज. सो लेट्स गो ऑन इब्राहिम, दैट्स माय इनिशियल पर्सपेक्टिव. Perfectly. Thank you, everyone. Thank you, Umair, and I hope everyone now you can hear Umair what he just said. So, Umair, first thing first, learning, development, employee engagement, 3 words, topic for our today's discussion. I would like to understand your perspective, your definition. What does it mean to you? If you can give me
your understanding, your opinion based upon your experience, of course. How do you define it for Yeah. yourself? Learning, development slash growth, and employee engagement, regardless of virtual Yeah. or physical or whatever that is. But what does it mean to you, these three terms? अच्छा, तो थैंक यू। या एक तो ये कि ये तीनों लफ्ज बहुत साथ मिले हुए इस्तेमाल होते हैं, और इसमें जो पहले दो हैं वो ज्यादा करीब, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो Yeah. एक तो आसान, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है। कोई डेवलपमेंट ओवरनाइट नहीं होती, कोई डेवलपमेंट इस सेशन में आप डेवलप नहीं हो जाएंगे लेकिन इसको अप्लाई करके, इसको एक्सपीरियंस करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको अपने अंदर की डेवलपमेंट मानेंगे। वो डेवलपमेंट क्या है इब्राहिम? कि उमेर अब जान गया है जो वो नहीं जानता था। तो एक तो बात यह है कि हम अपने आप को कम जानते हैं, दूसरा हम अपने कारोबार को भी कम जानते हैं, और तीसरा अब हम जिस दुनिया में हैं उसमें अगर हम नहीं जान रहे तो दुनिया तो मुसलसल और जिस रफ्तार से अब डेवलप कर रही है वो आपको ऑब्सोलीट ही करके छोड़ेगी। सो डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है, मैंने कुछ बनना है, मैंने कहीं पे पहुंचना है। जब मैं एक इदारे में आता हूँ, वो इदारा अच्छा इदारा अगर है तो मुझे हायर करते हुए ये देखता है कि लॉन्ग टर्म में कहाँ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म में इदारे ने भी मुझे सपोर्ट करना है, मैंने भी जिम्मेदारी उठानी है कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। व्हाट वुड हैव बीन डिफरेंट इन दैट टाइम? मेरी नॉलेज, मेरी स्किल्स, अब मैं ज्यादा चीजें कर सकता हूँ। और तीसरा मेरा नजरिया, मेरा देखने का रवैया। ये तीन चीजें हैं जिस पे लर्निंग सारी की सारी जिस भी अंदाज में करें, ट्रेनिंग में करें, सेमिनार्स करें, वेबिनार्स करें, डिजिटली करें, इंटरव्यू करें, पॉडकास्ट करें, एक्सपीरियंसेस करें, सिमुलेशंस करें, नॉन ट्रेनर करें, फैसिलिटेटर लेड करें, कोचिंग करें, मेंटरिंग करें, आप कर क्या रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग अ डेल्टा इन केएसए, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड। ये लर्निंग है। और आज की सदी में अनपढ़ जाहिल वो हैं जो लर्निंग नहीं कर सकते, यानी नई चीजें नहीं सीख सकते, अनलर्निंग नहीं कर सकते, यानी जो चीजें नहीं चल रही उसको छोड़ दें, भुला दें, और रीलर्निंग नहीं कर सकते, यानी वो उसूल जो इब्राहिम हमने उठा के साइड पर रख दिए थे कि नहीं नहीं डेवलप, उसूल जो हर वक्त के थे हम दोबारा से जान सके। सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज दिस। एम्प्लॉय एंगेजमेंट मैंने कहा कि मिलती है, इससे कैसे मिलती है कि अक्सर लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंगेज, जब भी इदारा कोई भी लर्निंग की एक्टिविटी कराता है तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ जाती है। बिकॉज अगर मैं आपका दोस्त भी हूं और आपकी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हूं, और जब आपसे मिलता हूं और हम कुछ अच्छे चीजें सीख रहे हैं तो आप मुझसे ज्यादा अटैच्ड होंगे। इसकी वजह ये नहीं है कि लर्निंग हमें शोधापन है हमारे अंदर, नहीं, लर्निंग हमारी नीड है। डू यू नो कि आफ्टर फूड, आफ्टर रिलेशनशिप्स, आफ्टर मशहूरी एंड आफ्टर दीज फिजिकल फ्रिल्स, आवर स्पिरिचुअल नीड्स आर कि उमेर को बढ़ना है। उमेर सेम अगर है तो उमेर सड़ जाएगा, और उमेर ने कंट्रीब्यूट करना है। सो ये हमारे अंदर इनहेरेंट नीड है। सो जब भी लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है तो हमारी एंगेजमेंट एम्प्लॉयज की बहुत बढ़ जाती है, और इदारे मुख्तलिफ परस्पेक्टिव से देखे जाते हैं। देन लास्टली, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तुम समझो कि जब हम फैक्ट्रियां पहले पुरानी थी तो हमारी साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, हम धंधा कराते थे, जो आज तक पाकिस्तान के बहुत सारे इदारों में होता है, राइट? मजदूर तबका है, आपने पैसा दिया, आपने काम करा लिया। आप ना करें एंगेजमेंट, वो बंदा कहता है मुझे तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन उसमें भी आप कुछ ना कुछ एंगेजमेंट जरूर करते हैं। आप उसको इज्जत देते हैं, आप उसको जगह देते हैं, आप खाने की चीजें मुमकिन बनाते हैं, आप कुछ ना कुछ बेनिफिट्स उस एम्प्लॉय को ऑफर करते हैं, और एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिसपे वो औरों के साथ कनेक्ट कर सके और इदारे का हिस्सा फील कर सके। सो दैट्स एम्प्लॉय इंगेजमेंट। अब इसको एक टॉप इदारा क्यों करेगा? क्योंकि वो इदारा जानता है कि मेरे लोग सिर्फ धंधा करने नहीं आते, और इंसान सिर्फ धंधे पे सबसे अच्छा नहीं होता, बल्कि इंसान सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उस वक्त देता है जब वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड होता है, इंगेज्ड होता है, उस काम को ओन करता है और उस काम में अपनी सक्सेस देख सकता है। इदारे कैसे मुमकिन बनाएंगे इसको? दिन सेलिब्रेट करेंगे बहुत सारे, अपने इदारे के कल्चर पे काम करेंगे, वैल्यू सिस्टम, उसूल लेकर आएंगे, सारे बड़े छोटे उस उसूल के सामने झुक जाएंगे। सीईओ भी होगा तो भी झुक जाएगा, अब छोटा भी इदारे का बड़ा हिस्सा फील करेगा। नंबर 3, एक्टिविटीज करेंगे, टाइम आउट्स, क्रिकेट मैचेस, पिकनिक्स, अवे डेज। नंबर 4,
विमेन डेज हैं, आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट के खास ओकेजन्स, कुछ कंपनीज अपने वैल्यूज डे मनाती हैं, फाइंड रीजंस टू सेलिब्रेट। लास्टली अपनी अपनी टीमों के अंदर और अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि बड़ी होती है, तो अपनी टीमों के अंदर कोशिश करती है कि वो अपने लीडर्स के साथ एज अ यूनिट ज्यादा से ज्यादा करीब आ सके। So there are plenty of activities around that, but that's what it means to me. That's how I've understood this. I think you have put it, you have, कहते हैं ना कि आपने स्टार्ट और फाउंडेशन बहुत अच्छी करती है, स्पेशली इट्स अ गुड फूड फॉर थॉट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग डिफरेंट डेज, पर्टिकुलरली अगर वैल्यूज हैं, कोई रूल्स ऐसे हैं जिस पे लोग इन कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आपने बात की थी इन्वेस्टमेंट की, जब लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। सो साइमन सिनेक, आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट थॉट लीडर्स इन लीडरशिप इज, ही सेज कि जब लोग पैसा इन्वेस्ट कर, व्हेन पीपल वर्क फॉर मनी दे वांट इन्वेस्टमेंट, बट when they invest work for emotions or they invest emotions, then they want to contribute. So when people invest money, they always want an ROI on that, but whenever someone invests emotions, they always want a chance to contribute, and I think that sets the tone for the discussion we'll have today. So Umair, you have worked, I mean, I know it, and of course a lot of people who are watching us would know it as well, that you have worked with people from almost all walks of life, almost all areas of Pakistan, if I may say. अगर आप उनके पास नहीं गए तो वो आपके पास किसी ना किसी वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में आ गए, which gave you chance to learn from different cultures as well and some different socio-economic background as well, because as we have worked with people in communities as well, and at the next day probably you will be training the C-level executives as well. So at an individual level, for just for a time being, अभी मैं organizations को थोड़ी देर साइड पे पार्क करूंगा and then we'll come back to it. इंडिविजुअल लेवल पे आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इफ आई मे यूज द वर्ड, जो हमारा खमीर है एज अ नेशन, इंडिविजुअल लेवल पे हम लर्निंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ को कैसे देखते हैं? बिकॉज मसला एक ये भी है, जब आपने बताया कि डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म, जो मुझे नहीं आता था आ गया, पता लग गया, अब उसका मतलब ये है कि मैं एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि जी मैं ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है, मुझे कोई एम्पावर नहीं कर रहा। सो एट अ पर्सनल लेवल, हाउ डू यू सी इट के हाउ reluctant we are, or how motivated or encouraged we are towards learning and development? Forget about organizations, आपका, मेरा, या for that matter किसी का भी पर्सनली, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है पाकिस्तान इज फ्रॉम लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, कैसे है? यू आर ऑन म्यूट उमैर। We struggle, Ibrahim. That's a very good question. In my opinion, we struggle. And we struggle for many reasons. स्कूल पढ़ने की पहली जगह थी फॉर्मल तालीम की, और बहुत बुरी थी। नफरत हो गई मुझे मौजूआत से, सड़े हुए उस्ताद थे, उनको ऐसे ऐसी चीजों से मसला था जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी यार। मैं तालीम से डिटैच्ड हो गया, या मुझे स्कूल में बुली करते थे लोग, या मेरे लिए ग्रेड्स लाना मुश्किल था। मैंने किताब बंद करके रख दी, मैं आज तक नहीं खोल पाया। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों की कहानी है। बहुत सारे पाकिस्तानियों की कहानी ये है कि यार ये देखे ना, इनके पास माल है, सबसे बड़ा रियल एस्टेट वाला कौन है इस मुल्क में, सबसे बड़ा शुगर की फैक्ट्री चलाने वाला कौन है, ये जो इतने बड़े बिजनेस नजर, इनके पीछे कौन लोग हैं, उन्होंने क्या तालीम हासिल की? मेरे पास रोल मॉडल नहीं है। आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं लर्निंग पे अश अश कर उठूंगा? तो जो कनेक्शन है ना कामयाबी का, वो पाकिस्तानियों के दिमाग में लर्निंग से इतना स्ट्रॉन्ग जुड़ा हुआ नहीं है। और इसकी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे कामयाब हैं जिनके अंदर लर्निंग नजर नहीं आती बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप्स, या हमारी लर्निंग से जो अटैचमेंट थी वो डे वन से ही हमने लूज कर दी बिकॉज ऑफ आवर स्कूल्स। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ब्राजील गया, इब्राहिम, मैंने एक कंटेनर में ट्रेनिंग कराई, उसमें 40 लोग एक कंटेनर में, 5वें दिन ट्रेनिंग के वो रो रहे थे। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने कितनी मुश्किल ट्रेनिंग कराई होगी, और मैं वो पाकिस्तान में कभी नहीं करा सकता। और वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम कहाँ से आए हो, और उन्होंने मुझे अपने कल्चर का एक सिंबल दिया, ओशू, पावर का साइन था वो। और बहुत हम रोए आखिरी दिन। मैंने पाकिस्तानी ट्रैक भी चलाया, ख्याल रखना, एंड दे डांस टू दैट। और उस दिन मुझे बहुत फीलिंग आई कि मैं अपने मुल्क में ये कब देखूंगा, जहां लोग सीखने के लिए आए होंगे। करना क्या चाहिए? दिखावा छोड़ें पाकिस्तान। सीखते आप इसलिए नहीं है कि आप फेसबुक पे दिखा सकें, सीखते आप इसलिए भी नहीं है कि आप अगली महफिल में फट करके बता सकें, सीखते आप इसलिए हैं कि आप बेहतर जान सकें यार
आप अपने खौफ से आजाद हो सकें, आप अपनी उदासियों से आजाद हो सकें, आपका अमल तब्दील हो सके, आप दूसरों को उस अमल पे ला सके। हम मिल के, हम सालों बाद भी वही मौजूआत अभी तक पीट रहे हैं। और मुझे लोग कहते हैं आप क्यों नहीं कुछ और कराते। मैं पूछता हूँ कि हम कैसे कुछ और कर सकते हैं जब तक हमने ये पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी। सो दिखावा छोड़े, नंबर एक। नंबर दो, थैंक्स अमात। नंबर दो, लर्निंग को एक्शन में नहीं डाला। यानी कि इफ यू, अगर आप जानते हैं और आप करते नहीं हैं तो आप जानते नहीं हैं। That comes from Anthony Robbins and that's an answer to a lot of people who say मुझे तो ये पता है। ट्रेनिंग में अक्सर लोग बैठे, मुझे तो ये पता है। तो मैं पूछता हूँ तो फिर क्या करते हो इस बारे में? अगर तुम इतना गोल्ड माइन जानते हो, तुम्हारे पास पाकिस्तान आपको बताएगा रिच डैड पुअर डैड, 1000 टोटके अमीर होने के, उनमें से कोई तनख्वाह नहीं बचा रहा, उनमें से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कम लोग कर रहे हैं, राइट? लेकिन उसमें से बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि उसको शेयर करते हैं और उस बात को जानना फखर समझते हैं। आई थिंक वी हैव गॉट टू चेंज दैट। अगर हम ये चेंज कर दें तो हमारे अंदर बहुत एक लर्निंग के साथ फिर हम, सवाल आएगा फिर मैं क्यों सीखूं? तो फिर जवाब यही आएगा कि यार ताकि मैं बेहतर कर सकूं, मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूं। फिर लोगों को वो दिखाएं आप। मैं तो ये कहता हूँ लोगों को, ये ना दिखाओ कि क्या सीखा है, ये बताओ कि वो सीख के जो किया उससे हासिल क्या किया तुमने। तो तुम शोधे फिर भी हो गए, मशहूर फिर भी हो गए, लेकिन तुमने सीखा इसलिए नहीं था कि ठप्पा मिल जाए। सीखा इसलिए था कि तुम कर सको, तुम बन सको, अपने अंदर राइज कर सको। I think that's very insightful and deep, and I totally subscribe to these ideas कि we are struggling, and I hope very soon you see this day जहाँ पे आप वो वाली ट्रेनिंग यहाँ पे भी replicate कर सकें, ब्राजील वाली। Now मैं talking, अब बीच में आपने एक लफ्ज़ बोला I played a track at the end. This brings me to a question or perhaps a common criticism on you which talks about कि जी उसमें सिर्फ फन होता है, गाने चल रहे होते हैं, ट्रेनिंग तो होती नहीं। सो एक तो हम ट्रेनिंग करते नहीं हैं, एंगेजमेंट है नहीं, लेकिन जब हम करते हैं तो या तो हम बिल्कुल क्लासरूम लेवल पे करते हैं या हम म्यूजिक के साथ करते हैं। सो उसमें ऑफ कोर्स दोनों साइड से कोई से एक्सेप्टेंस भी है, क्रिटिसिज्म भी है। एंड आई डू रिमेंबर पर्सनली व्हेन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी इयर्स बैक, तो यू सेड बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास और कोई एंटरटेनमेंट का आउटलेट नहीं है। सो लोग अगर वैसे नहीं सीखते जैसे आप सिखा रहे हैं तो फिर वैसे सिखाएं जैसे वो सीखना चाहते हैं। एंड आई थिंक वी बोथ हैव सब्सक्राइब्ड एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस, जहाँ पे ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज अदारे जहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं सुनता जी, कोई नहीं आता, एंड टर्न्ड आउट एवरीवन लर्न एंजॉयड एंड एवरीथिंग। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट and Yeah, how I'm important I'm it is for so in learning? I read this, the first book that I big book that I read. It said that this is not the age of education, this is the age of entertainment. And I read Okay. that book in 2004. So Okay. मुझे, अब मैं तुम्हें इसका फ्लिप बताता हूँ जो मेरा इस पे थीसिस है। एक तो ये कि क्यों सड़े में, क्यों कोई मुस्कुरा नहीं रहा, क्यों लोगों को उठने में इतनी मौत आ रही है। ये चेंज करेंगे? ये अपनी सीटों से नहीं उठ रहे अभी। ये एक एक्सरसाइज नहीं करते लीडर्स ये कह के, हाँ ये क्या एक्सरसाइज है। दुनिया भर में लोगों को ऐसी ऐसी चीजें करते हुए देखा है। वो क्या करना चाह रहे होते हैं? सीखना चाह रहे होते हैं, अपनी टीम के साथ होना चाह रहे होते हैं। सो एक तो ये भी नवाबी जो है ना, ये हायल हो जाती है रास्ते के अंदर सीखने के हवाले से। एंड देयरफॉर आई ट्राई ब्रेकिंग दैट। मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मेरी ट्रेनिंग में जो लोग हैं वो पैर जमाएं, सांस दें, मुस्कुराएं, अपने आप को फील करें, अपने आप के साथ कनेक्शन दौड़ाएं, ताकि वो उस ट्रेनिंग के अंदर जो बातें हो रही हैं उसको अपनी जिंदगी और अपने ख्यालात पे जाके लगा सके। अगर वो कनेक्टेड नहीं है इब्राहिम, तो आप बेहतरीन उस्ताद को ले आए, वो फेल है। यू नो इट, आई नो इट। सो Great. एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि यार ये फोन है, इस फोन के ऊपर तुझे कुछ पसंद नहीं आता तो कितना टाइम लगता है उसको चेंज करने में? What are people, what are we doing? We like this, we like this. But what do you do with a trainer who you don't like? You're stuck, right? So therefore I tell trainers कि यार देखें, लोग हर तरह के होते हैं। उन्हें कहानियां भी पसंद हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट्स भी पसंद हैं, उन्हें जो है एक्सरसाइज भी करनी है, उन्हें जो है अपनी मस्तियां भी करनी है, उन्हें
ऑफलाइन टाइम भी चाहिए होता है, उन्हें जरा ऑडियो विजुअल भी चाहिए। एज अ ट्रेनर मैं एक ग्रुप के लिए नहीं आता, मैं सबके लिए आता हूँ। मैं एक ग्रुप, जो ग्रुप के अंदर फर्दर सब ग्रुप होता है जो कि बड़ा जानने वाला होता है और उसको मैं खुश करता रहूं, नहीं नहीं नहीं, मैं सबके लिए आता हूँ यार। मैंने ऐसा अंदाज बनाना है जो सबको समझ आए। उसमें कोई बहुत बड़ा जानने वाला होता है तो मेनी टाइम्स वो कहता है हाँ तो इसमें क्या था, सारा मजाक ही था और फन था, लेकिन मैं सिर्फ उसको फीडबैक नहीं मानता। हो सकता है ये उसकी अना भी हो, मैं ये बात भी मानने के लिए तैयार हूँ कि कुछ सेशंस मेरे भी लूज होते हैं, लेकिन अक्सर औकात जिन बातों को लोग कह के जाते हैं ना कि यार it wasn't worth it, are really the things that are real value। लेकिन हो सकता है एज अ ट्रेनर आप फेल हो गए हो उसकी इंपॉर्टेंस स्टैब्लिश करने में। लेकिन लास्टली आप एज अ ट्रेनर एंटरटेनिंग अपने सेशंस को जरूर बनाएं, एज अ पर्सन एंटरटेनिंग बने, सेंस ऑफ ह्यूमर लेकर आए, वर्सेटाइल बने, अपने जिस्म का इस्तेमाल करें, जज्बात का करें, कंधों को हिलाएं, चलाएं। बड़ी जो लोगों ने वायरिंग्स बनाई हुई है ना उनको तोड़ें। इब्राहिम ये मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस ये लर्निंग टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम एक सीडी में चल रहा है, अभी से अगला सवाल सोच रहा है ना, कब ये रुकेगा तो मैं मारू सवाल, राइट? नजर आ रहा है तेरे जिस्म के अंदर, मैंने ये सीडी तोड़नी है तुम्हारी। और जब मैं ऐसी हरकतें कराता हूँ ना, जब लोग हंसते हैं ना तो उनकी सीढ़ियां टूट जाती। हंसते हुए आदमी को आपने देखा है कैसे उसकी शक्ल मुंह हो जाता है, और वो देखता भी उसकी तरफ है जिसको पसंद करता है। आई वॉन्ट टू सी दैट स्टेट, क्योंकि इंसान उस स्टेट में सबसे बेहतरीन क्रिएटिविटी दिखाता है और बेहतरीन लर्निंग दिखाता है और सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो थोड़ा सा तोड़े लोगों को और कुछ क्रिटिसिज्म ले ले। मुझे लोग कहते हैं ना मस्ती करा रहा है, तो हाँ कराता हूँ यार, जरूरी है ताकि लोग खुले, उन्हें बिलीव कर सकें कि मैं वर्दी हूँ, मैं सीख सकता हूँ। जब वो मस्ती में हिल लेते हैं तो फिर वो काम की चीज पे भी हिलते हैं। आप देखा करें लंबी ट्रेनिंग्स में कैसे लोग एक्शन दिखाते हैं, जब आप उनको सीरियस ले जाए तीसरे दिन कोई मस्ती नहीं हो रही, लोग खुद ही लगे हुए। क्यों? क्योंकि अब वो कनेक्शन में आ गए, इंगेज हो गए आपकी ट्रेनिंग के साथ। So those are my thoughts. I would lastly say this that I think in today's times there is less need for content. And more There need is for more engagement. need for experience. Yeah. There is more need to come close। और लोग अभी तक ये कह रहे हैं यार ये बता रहे हैं आप, ये हम बताने से आगे बढ़े। अब लोगों को पता है, निकलवाएं क्या पता है और लगवाएं एक्शन में, और हंसने Yeah. दें उस बात पे जो उनसे नहीं हो पा रही, ताकि वो उसको डील तो करे ना। सो दैट्स Yeah. माय स्ट्रेटजी। And I think जो आपने बताया कि I come as you rightly said कि I come for all types of audience. So ये अगर हम वो जो लर्निंग प्रिंसिपल्स को देखें एडल्ट लर्निंग के, तो वो भी यही बताता है कि भाई कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई एक्सपीरियंस करके सीखता है. So that's again या it's backed by science as well. So it's not a personal opinion. Let's quickly jump to COVID, Umair. Did COVID affect your business or your work? Why are you asking me this question? Because I have series of questions lined up for this after this actually जो कि इसका follow up में होंगे. So yeah. I never in my wildest imaginations, Ibrahim, thought कि सारे जहाज रुक जाएंगे, सारे हॉल खाली हो जाएंगे, स्कूल्स कैमरे पे आ जाएंगे। It was, I do imagine a lot of wild things, the end of the world। लेकिन ये नहीं सोचा था यार। और जितने इदारों से लीडर्स के साथ इस टाइम में काम करने का मौका मिला, सब हिले हुए फील हुए। और मैं इस बात को शुरू में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सब ने बहुत कोप किया है। हम सब ने मुख्तलिफ अंदाज में अपने आप को खुश रखा है, वर्जिशें की हैं, खाना खाया है, अपने काम मुमकिन बनाए। सो पैट ऑन द बैक फॉर दिस वर्क डन। Coming to training and COVID, I think, like I said earlier, it was a blessing in disguise. But what was the disaster that blessing तो आपका रिफ्लेक्शन है ना कि क्या हासिल हुआ, डिजास्टर क्या हुआ। हम सारे के सारे डेज पे चलते थे ट्रेनिंग इदारे। हमारे 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, आपके पास 3-4 ट्रेनर है, उनके नंबर ऑफ डेज हैं, क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं। ये ट्रैवल करके मुख्तलिफ प्रेमिसेस पे पहुंच के, वेन्यूज पे पहुंच के इन पर्सन ट्रेनिंग कराते थे।
टीम को मिलाना है तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, आप किसी भी लोकेशन पे जा रहे हैं, नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं, पहाड़ों पे, समुद्रों पे, आप एक्टिविटीज करा रहे हैं। अच्छा, हमने सीखने का इसके अलावा बहुत कम टूल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनाए थे, और ट्रेनिंग का सिर्फ यही हमारे पास परहैप्स तरीका था। और एलएमएस जो है वो सिर्फ बैंक्स के पास होते थे ज्यादातर, या कुछ बड़े इदारों के पास। और उस पे Yeah. भी क्लाइंट खुद ही और एम्प्लॉयज भी एक कहते थे, मैंने खुद कितने इदारों में जाके एलएमएस पे ट्रेनिंग कराई कि भाई आप एलएमएस चलाएं। So there was not a case for us to work in the other direction as trainers and as training companies. And so nobody did. When nobody did and Corona came in, everybody was out of work. I agree. So, Everybody had fixed expenses and no yeah, revenues. We had not worked on our, एज ट्रेनिंग कंपनी हम ये नहीं सोचते कि हमारे एसेट्स क्या है, हम कैपिटल कितना जनरेट करें, हमारे बैकअप्स क्या है, क्योंकि दिमाग में क्या होता है, इब्राहिम जाके कर लेंगे ट्रेनिंग यार अब ट्रेनिंग ही नहीं है। सो training. दैट इज, अब इसके साथ मैं एक और बात करना चाहूंगा जो कि बहुत अहम है। ये तो इदारों के साथ हो गया जिस तरह बाकी इदारों के साथ भी हुआ, यानी बिजनेस ही चला गया ना यार। अब जो Yeah. बिजनेस है वो आता नहीं है, कंपेटिटिव एडवांटेज बिजनेस नहीं है, चला और उस गया पे कि करने बाबा वाले और उमेर, लोग हैं। या उमेर, इफ यू, आई थिंक यू वुड एग्री कि पाकिस्तान में जनरली विद कॉर्पोरेट्स और विद ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग वाज नेवर अ प्रायोरिटी, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स डन कि जी बजट है, कराना है, अगर कोई मल्टीनेशनल या एफएमसीजी है क्योंकि उनके इंटरनेशनल मैंडेट में ये चीज़ है, या या ये है कि पूरा साल काम किया तो 3 दिन जाके कहीं पे पार्टी कर रहेंगे हिल स्टेशन में। सो वो वैसे भी सीरियसनेस नहीं थी। फिर कोविड के तो जो रहा था, बिकॉज वो अदारे भी सफर किए ना, अदर देन फार्मास्यूटिकल्स एंड जो एसेंशियल्स जो थे। सो वो ट्रू, बिल्कुल ही बैक एंड पे चला गया। सो हाउ डिड यू जिनके कोप लिए विद इट? कॉस्मेटिक था उनके लिए तो खत्म हो गया। बिल्कुल, या। सो वन थिंग दैट आई वांट टू आस्क के जब इफ यू कैन रिकॉल फ्रॉम सितंबर और अक्टूबर लास्ट ईयर जब फर्स्ट वेव खत्म हुई थी, बिकॉज फिर हम थोड़ा सा वापस आए, फिर दोबारा वो हाइब्रिड मोड पे चले गए। सो व्हाट इज द कॉमन एक्सक्यूज और कंप्लेंट्स यू हैव हर्ड फ्रॉम योर क्लाइंट्स व्हेन दे एंगेज यू, कि मतलब क्या सेम चैलेंजेस हैं या डिफरेंट चैलेंजेस हो गए? सो इफ यू कैन जस्ट शेयर सम लाइट ऑन दैट कि नाउ या एचआर फॉर एग्जांपल, ओडी के लोग या अदारे के मालिकान, व्हाट डू दे कंप्लेन अबाउट के वर्क फ्रॉम होम से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी टीम की एफिशिएंसी कम हुई, बढ़ी? या हाउ डू दे नीड योर हेल्प? True, a very good question. And of course, employers themselves have been shocked and have learned many things. और अभी भी शॉक मोड चल रहा है, क्योंकि पहले तो चले एडजस्ट कर लिया, कोरोना आ गया, वर्क फ्रॉम होम करें, आधे लोग आए आधे जाए। अब तो चीजें मुख्तलिफ हो गई हैं, लोग वैक्सीनेटेड हैं, अब लोगों को वापस आना है और कुछ इदारों में लोग नहीं आना चाहते, कुछ इदारों में लोग कहते हैं ये तो अच्छी पॉलिसी थी, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस आ गया था। आई वुड जस्ट वांट टू फिनिश द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, कि देखो एक तो इंस्टीट्यूशन से फर्क आया, लेकिन ट्रेनिंग इंडस्ट्री तुम्हें पता है कि इंडिविजुअल जोर रखती है, राइट? पर्सनल ब्रांड्स की बड़ी वैल्यू है। अच्छा, ये पर्सनल ब्रांड से मेरे बहुत इंटरेक्शन हुए हैं। ट्रेनर जो है ना, उनका एक लाइफ स्टाइल है, और वो लाइफस्टाइल बिल्कुल एट अ हॉल्ट आ गया, जिसमें बहुत जहाज है, जिसमें बहुत जगहों पे पहुंचना है। एक प्रोलिफिक ट्रेनर पाकिस्तान का कोई दिन में, महीने में 10-12 रातें बाहर गुजारता है और जगहों पे। ये जब सब नहीं हुआ ना इब्राहिम, तो मुझे ट्रेनर्स ने बताया कि उनके रूटीन्स खत्म हो गए, उनकी आदत, हरकतें, नेटवर्क्स, खुशियां जुड़ी हुई थी मुख्तलिफ जगहों से, इलाकों से, और लोगों का वैसे भी होता है, लेकिन ट्रेनर्स गेट टू ट्रैवल अ लॉट। सो आई थिंक या दैट आल्सो वाज अ पर्सनल टूल फॉर इन द कोविड टाइम्स। इदारों के इस वक्त क्या कंसर्न्स है? नंबर एक ये कि इदारों को बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिली हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। कॉस्ट कम करने के तरीके मिल गए। आपको जरूरी नहीं कि आप हजारों लोगों के लिए बड़ा दफ्तर बनाए, हर किसी का वर्क स्टेशन बनाए। हमने कोविड से पहले ही ये शिफ्ट देखा था कि इदारों ने कहा कि फिक्स वर्क स्टेशन नहीं होने चाहिए, people should be able to work in flexible work environment। हमने विमेन मूवमेंट के बाद देखा पाकिस्तान में बहुत पॉलिसीज में चेंज आया, डाइवर्सिटी एजेंडा के बाद, तो मे बी वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज बन गई थी। लेकिन अब इदारों ने एक्सपीरियंस किया है कि हम एक साल बगैर मिले हुए काम कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ऑर्गेनाइजेशंस विल नेवर फॉरगेट दैट। ऑर्गेनाइजेशंस अब कॉल करके कहती हैं कि हम एक साथ 800 लोगों की ट्रेनिंग कराएंगे अपनी फील्ड फोर्स की 2 घंटे की, 2 घंटे की इब्राहिम, और 3 मरतबा कराएंगे, बजाय इसके कि एक दिन का सेशन कराएं।
यानी ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें वैल्यू नजर आई है डिजिटल हरकतों के अंदर, चीजों के अंदर। नंबर 3, लोगों का, क्योंकि उन्होंने और चीजें करने का मौका मिला, एंड दे रियली रियली गॉट अ ब्रेक दैट दे कुड नॉट हैव इन द रूटीन schedule, so they have brought more creativity, more ideas back to the table. These are the opportunities. What are the challenges? बड़ी मुश्किल से बनती है इदारे के साथ लॉयल्टी, और Yeah. जब लोग रोजाना मिलते हैं ना इब्राहिम, तो वो रीइंफोर्स हो जाती है। हम साथ हैं, हम साथ गपशप लगाते हैं। अब हम साथ नहीं है, अब हम सिर्फ काम, और वो भी कैसे, ईमेल। और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो पागल हो गए, मेनी अ टाइम्स दे हैव had developed mental health issues many a times, because working on a computer versus working in an office with people around, big difference there. Number 2, people have lost the 9 to 5 routine. The 9 to 5 routine, लोग कह रहे हैं कि यार अब हमसे नहीं होता। लोगों को ये 1.5 घंटा सुबह ड्राइव करके जाना, घंटा ड्राइव करके जाना, it seems like a lot. For parents that have gotten time with their children during this time, ठीक है, कुछ भागना भी चाहते हैं वापस, यार शुरू हो जाए काम, लेकिन कहीं ना कहीं इब्राहिम ये जरूर आ गया है कि there are other ways of working, and organizations will have to respond to that. My third point will be that during this time, because it was survival, and survival brings our horrible side, right? We Yeah, only think it's a about very ourselves. powerful instinct and it makes us do a lot of crazy things. So all of us did that. Yeah. Bosses did that, subordinates did that, organizations did that. So जो एक मान था ना, एक जो रिश्ता था, एक जो हम लेट गो कर देते थे हम, I have a feeling that we have to heal. We have to give each other the chance to tell us stories कि यार हुआ क्या कोरोना में, बताओ तो सही। हम मिले तो थोड़ा थे ना, हम कैचअप नहीं कर पाए इस टाइम में, और हमने अपनी कहानियां बना ली। इदारे ने भी सख्त फैसले कर दिए होंगे, बॉस ने भी एक्ट अप किया होगा, बट वी हैव टू understand that that was crisis, and that was not the best of us. The best of us we will decide together. So those are the opportunities and challenges from the people engagement and learning lens. Yeah. So just talking about two things, I'll pick two words. One is remote work and the second is engagement. I'll ask just last question and then I have some questions जो कि मैं आपसे पूछूंगा. Sure. So Mayor, interestingly, that's my observation and I can be right or wrong. I would like to know your opinion about it. पाकिस्तान इस वक्त ऑफशोर डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यूएस, यूके, यूरोप के जो डेवलप आईटी का जो काम हो रहा है, मे बी फ्रीलांसर्स, बीपीओज एंड अदर सर्विसेज, सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो बन गए और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं रिमोटली। However, the same software house or BPO does not allow their staff to work remotely. You know, they want people to come physically. So it's like कि मैं एक आईटी कंपनी चला रहा हूँ और मैं बाहर से प्रोजेक्ट्स उठा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, True, और true. मेरा कॉमन जो है वो ये है कि जी लोग अपना काम Yeah. शुरू कर देते हैं, इंगेज नहीं रहते, सामने उनको ऑफिस में बुलाना है। टेक्निकली मैं बाहर से काम इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको सस्ता भी पड़ रहा है, ऑब्वियसली ऑपरेशनल कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ। So you have a chance to win a business and you're doing reasonably well, but you don't give the same facility to your team, for example. Here you want them within the four walls. But and some people have actually asked this as well. What are your tips and what are your some if you want to share some practical advice to such organizations, A, in terms of their culture, B, in terms of engagement in remote work environment, like you True. rightly said कि हम वैक्सीनेशन की ड्राइव के बाद कुछ अदारे लोग वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मोस्ट प्रॉब्ली विल बी बैक। जब तक नहीं आते तो वर्चुअल या रिमोट इन्वायरमेंट को I don't think we'll कल्चर be back in the same way ever. I don't think we will be back. देखिए, जब रिश्तों में मसले आते हैं तो लड़का लड़की एक दूसरे को मनाते हैं, और फिर लेट्स से सही हो जाते हैं तो कहते हैं वी आर बैक, बट दे आर नेवर बैक द सेम वे। आर वी द सेम एनी डे इब्राहिम? वी आर नॉट। कोरोना के बाद दुनिया बैक नहीं जा रही, कोरोना के बाद दुनिया अहेड जा रही है, और ये अहेड हाइब्रिड है। ये हर चीज में हाइब्रिड है। आपकी चश्मे स्क्रीनें बन जाएंगी, आपकी आंखों पे एडिशनल सपोर्ट है, आप चिप इम्प्लांट्स करेंगे। ये जो सारी चीजें बाहर हैं, ये सारी हमारे अंदर फिट हो रही है, राइट? हमारी दुकानें, जो आज का रिटेल है जो सिर्फ कपड़े देता है, वो फिर ऑनलाइन दुकानें उसने बना ली। अब मुस्तकबिल का रिटेल वो होगा जिसमें ऑनलाइन और फिजिकल में फर्क ही नहीं होगा।
यानी मैं फिजिकल स्टोर में भी स्क्रीनें चला रहा हूँ, कपड़े चेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर किया, घर आ गया, घर से ऑर्डर किया, ओमनी रिटेल हो जाएगा। तो वी आर नॉट गोइंग बैक, यू आर नॉट गोइंग बैक इब्राहिम, यू विल नेवर बी द सेम इब्राहिम। तुम्हें समझ आ गया है प्रायोरिटीज क्या है, so so हम्म you will think accordingly. I have learned a lot and I don't think I'm going back. My organization has learned a lot and I don't think it's ever going back. So I would suggest that please don't think about going back. अब जहां तक बात रही कि इदारा, इस पे पहले भी किसी ने सवाल किया था, बहुत अहम सवाल है, क्या रिमोट वर्क में हम एंगेजमेंट बनाए कैसे? देखिए, एम्प्लॉय एंगेजमेंट की इब्तिदा मेरे लिए, एंड आई बैक इब्राहिम हियर व्हाट ही सेड अबाउट Simon Sinek being a lovely, I would say, leadership guru of our times, the way he communicates and the ideas that he communicates. उसने बहुत आसानी से बताया कि देखिए, उमेर अगर ट्रेनिंग इदारा चलाता है, मिसाल के तौर पे आप एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं, राइट? आपका व्हाट है सॉफ्टवेयर, आपका हाउ है, आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, प्लेटफॉर्म्स, जो आपकी स्किल्स हैं, वो सारा आप हैं क्यों, आपका वाई क्या है, आप क्यों एग्जिस्ट करते हैं? और ये आप अर्लीस्ट सिलिकॉन वैली की कहानियों से सुनते हैं कि एप्पल ने अपने लोगों को बिलीव कराया कि वो जो काम कर रहे हैं उससे वो दुनिया को तब्दील कर रहे हैं। मैं ऐसे इदारों को जानता हूँ, एक इदारे का मकसद है कि हम पाकिस्तान के तमाम सड़क के बच्चों को स्कूलों में डालना चाहते हैं, और ऐसे स्कूलों में डालना चाहते हैं जहां हम अपने बच्चों को पढ़ा सके। हम्म आप कैसे एंगेज नहीं होंगे ऐसे ख्याल के साथ? आप इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात पता है क्या, कि जब आप ऐसे ख्वाब के साथ जुड़ गए ना, मिसाल के तौर पे मैं चला रहा हूँ इदारा, मैं आपको कहता हूँ यार हमारा ये ख्वाब है, हम ये करना चाहते हैं। जैसे मैं चलाता था स्कूल ऑफ लीडरशिप और मैं अपने ड्रीम्स शेयर करता था लोगों के साथ इब्राहिम, तो फिर हम्म लोग मेरे लिए काम नहीं करते थे, लोग उस ड्रीम के लिए काम करते हैं। ये साइमन सिनेक ने अपनी टॉक गोल्डन सर्कल में बहुत मजेदार अंदाज में एक्सप्लेन किया है। सो आप में से जो रिमोट इदारे, रिमोट टीम्स चला रहे हैं, एक तो वाई अपना डिफाइन करें। और वाई थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन वो कहानियां जो आप सबसे ज्यादा सुनाना चाहते हैं ना, उसमें आपका वाई होता है, अपनी जिंदगी की, अपने काम की। थोड़ा सा मेहनत करें और उस मकसद को सबसे ज्यादा बुलंद कर दें इदारे के अंदर, और लोगों को ये ना कहे कि यार बी लॉयल टू मी, नो नो नो, बी लॉयल टू दिस कॉज। अब हम्म बंदे छोटे हो गए, आपको पता है ना, बंदे बड़े हो जाएं और एक बंदा बड़ा हो जाए मेरी तरह का, तो तबाही तबाही हो जाती है। जेलिसीज आ गई एंड प्रॉब्लम्स आ गए। सो ग्रेट टीम्स यूनाइट अगेंस्ट दैट मिशन, ऑन दैट मिशन। और यही हम सुन्नतों से भी सीखते हैं और यही तमाम लीडरशिप में हम सीखते हैं। इनफैक्ट लीडर्स को ये सवाल पूछना चाहिए कि इफ आई एम नॉट देयर, व्हाट माय टीम इज गोना डू, दैट इज माय लीडरशिप। सो एक तो वाई पे काम करें। अब जो आप रिमोट हैं, तो अपने दिमाग से ये जो कैद बनी हुई है ना कि रिमोट लोग हों तो एंगेज नहीं हो सकते, इसको क्वेश्चन करें और ऑल्टरनेटिव्स पे आ जाएं। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि रिमोटली काम नहीं हो सकता, लोग एंगेज नहीं हो सकते, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर आप ये बिलीव कर लें कि ये हो सकता है, तो आप कम से कम सोल्यूशन तो सोचेंगे, तो बेशुमार सोल्यूशंस आपके पास आएंगे। मैंने डिजिटल इब्राहिम ऐसी रिट्रीट्स देखी हैं कि फिजिकल रिट्रीट्स इतनी फन नहीं होती। या क्यों? क्योंकि फिजिकल रिट्रीट्स में लोग चले एक्टिविटीज कर रहे होते थे, यहाँ लोग फोन पे काम कर रहे हैं और स्क्रीन पे आ रहा है और स्कोर बोर्ड सामने चल रहा है। अमेजिंग। हम्म ब्रिटिश काउंसिल की एक ट्रेनिंग थी, उसमें हमने एक एक्टिविटी की जिसमें हम फोन लेके बाहर निकले और हम 30 मुल्कों से थे, और हमने एक दूसरे को अपनी गलियां दिखाई। हम्म हाउ कैन यू, सो ये क्रिएटिविटी का चैलेंज है। और मैं आपके साथ हूँ जुनेरा, आपने फिलसूफ हमने कभी किया नहीं है ना ये, तो हमें लगता है मुश्किल है, हो नहीं सकता। स्कूल से मुझे कहते थे ऑनलाइन क्लास तो हो ही नहीं सकती, आज मॉन्टेसरीज करा रही है ऑनलाइन क्लासेस। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, इस पे मुस्कुराएं, गहरी सांस लें, और बहुत सारी चीजें जो आप कहते हैं नहीं हो सकती, वो आपकी जिंदगी में होंगी। अब सोचें क्या क्या कर सकते हैं। माई सजेशन वुड बी, एक तो जो रिमोट टीम्स हैं वो डेडिकेटेड रिचुअल बनाएं। आपको दिन के अंदर एक वक्त चेक इन जरूर करना चाहिए। ये 15-20 मिनट का चेक इन हो, सब अपडेट कर दें, हाय हेलो करें। आप हफ्तावार मीटिंग करते हैं, वो जरूर स्केड्यूल में रखें और मंथली रखें। ये तो आपका एक पैटर्न है, रिचुअल है टीम को मिलाने का। अब कुछ साथ फन एक्टिविटीज सोचें। मैं अभी एक टीम के साथ काम कर रहा था, अभी वो लूडो खेल रहे हैं डिजिटली। सो आई नो अनदर टीम दैट इज राइट नाउ प्लेइंग पबजी।
and they have made teams and they have competitions going on. So ये वो चीजें जो कि इदारा पहले रिट्रीट की सूरत में अपनी टीम को कहीं लेके जाता था, अब आप लोगों को डिजिटली लेके जा सकते हैं। सो ले जाएं उनको। फिर तीसरा जो सेलिब्रेशंस, बर्थडेज, डेज, कॉन्फ्रेंसेस, लॉन्चेस इब्राहिम फिजिकली होते थे, अब उसके Yeah. डिजिटल तरीके आ गए और कुछ ज्यादा बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं ना, क्योंकि लोगों ने जब एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो और पहली बार कर रहे हैं तो वो भी एक्साइटिंग होता है। लास्टली इस पे एक टिप एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे ये है कि देखें, जब आप लोगों को नए इसमें से कोई भी टेक्निक्स आप पिक करते हैं ना, तो कोशिश करें कि वही इसके चलाने वाले बने, उन्हीं को जिम्मेदारी दें, बजाय इसके कि आप एज ए लीडर जिम्मेदारी लें। तो होता ये इब्राहिम दैट एक तो पीपल लव डूइंग सच थिंग्स, टेकिंग इनिशिएटिव, और ये चीजें बोरिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब इब्राहिम करता है तो अलग करता है, उमैर करता है तो अलग करता है, तो अब Right. आपकी ये टेंशन भी खत्म हो गई। लास्टली जब लोग जिम्मेदारी उठाते हैं तो वो अटैचमेंट फील करते हैं, यानी उनकी ओनरशिप टीम के साथ बढ़ जाती है, और उनको ये नहीं लगता कि यार ये एक रगड़ा है, मैनेजमेंट ने सेट किया हुआ है इसलिए करना है। उनको फील होता है कि ये उनका इनिशिएटिव है। और बेस्ट एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स वही होते हैं जो लोग जिसको ऑनर करते हैं और उसको स्टीयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Right, Umair, so I'll be taking some questions from our जो अभी वेबिनार पे जिन्होंने पूछे हैं। Yes, So sure. राद आजम खान Just कहते to हैं be just to be mindful, Ibrahim, I will have to leave at 7 sharp. So we have 14 minutes. So we'll do this quickly, okay? Wrap it. your wish is my command, sir. So can you reflect some tips of how to grab a typical person attention or interest? So I don't know what it means with a typical person or just a Who is specific that person typical either in person, their huh? organization. Yeah. So I'd अगर कोई like to ऐसी know if that typical person is a male or a female. What is their age? okay. But the best way to get attention, मैंने ये recently सीखा है कि ego का opposite है presence. और प्रेजेंस हमारा बेस्ट प्रेजेंट है किसी भी इंसान के लिए। आप किसी के सामने आए, आप उसको बिल्कुल कबूल करें, उसको उस लम्हे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तस्लीम करें, लिसनर बन जाएं, and you will see that it's transformational, it's magical. So that's what I would recommend. इसको Right. ऐसे भी फर्दर करें अपने दिमाग में कि किसी भी सिचुएशन में सुपीरियर या इंफीरियर फील ना करें। आपकी पोजीशन है, आप फाउंडर हो सकते हैं, आप दो चीजें अच्छी करते हैं, वेरी गुड यार, गॉड ब्लेस यू, लेकिन अपने आप को सुपीरियर और इंफीरियर फील ना करें, क्योंकि सुपीरियर लोग तवज्जो दिल वाली नहीं ले पाते लोगों की, और इंफीरियर लोगों को हम वैसे ही कटा देते हैं। हम तवज्जो उनको देते हैं जो हमारे जैसे, हमारे लेवल पे, और जो हमें सेफ्टी दे रहे होते हैं। सो एक तो ये सेम लेवल प्रेजेंस। टेक्निक्स क्या है लोगों की तवज्जो लेने की? तारीफ करें, एक्नॉलेजमेंट सीखें। किसी ने कोई अच्छा सूट पहना हुआ है, आप नहीं जानते, कह दें यार नाइस सूट। आपको क्या रिश्ता चाहिए खिजर किसी से बात करने के लिए? मेरे उस्ताद ने तो मुझे सिखाया तेरा हर किसी से रिश्ता है। मैंने कहा खिजर और तू माँ के पेट से आए, ये तुम्हारा रिश्ता है। खिजर और तुम एक उम्मत हो, खिजर और तुम एक इकोसिस्टम हो, खिजर और तुम एक पाकिस्तान। कितने तरीके यार जो मुझे तुमसे मिलाते हैं। तारीफ करें एक दूसरे की। नंबर 2, लोगों में इंटरेस्ट लें। इंटरेस्ट लेने का मकसद क्या है कि यार मेरी दुनिया तो मुझे पता है ना, मैं इब्राहिम से मिलता हूँ तो मैं इब्राहिम की दुनिया जानना चाहता हूँ, और मैं इब्राहिम से मिलता था। He used to drop me to the airport on a bike. We were both very poor back in the time. We're still very poor. Maybe with some money we are still poor. He used to drop me off. He used to sit, and जब हम बैठते थे तो मेरे लिए इब्राहिम की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। He's from Punjab. He speaks a certain way. He has a certain sense of humor. And when I sit with him, fine, I want to impress him and I want to, do things. लेकिन मैं जब चुप करता हूँ ना और इंटरेस्ट लेता हूँ इब्राहिम में, तो मैं उस दुनिया में जाता हूँ जो मैंने नहीं देखी, और फिर मैं कभी उस दुनिया से आए हुए शख्स को सेम अंदाज से नहीं देखता। So I'd advise that. That's the true way of building relationships, getting attention. Acknowledge, take interest, ask questions, listen. चले जाएं, एक फॉलो अप मैसेज करें, तस्वीर भेजें, ताकि रिश्ता थोड़ा सा पक्का हो सके। Right, thank you very much, Umair. एक तो आपने मुझे टाइम का बता दिया, so I understand. I think you are in middle of some training or some virtual program, so I would request brief answers ताकि मेरे सवाल पूरे हो जाएं, ठीक है? Okay. So
मोहम्मद उनैन कहते हैं कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड टाइपिंग मास्टर, तो हाउ कैन आई ग्रो माय वर्क। और एक चूंकि टिपिकल क्वेश्चन है जो आपने अपनी सारी जिंदगी आई एम श्योर अब तक बहुत सुना है, तो मैं साथ ही क्लब कर देता हूँ। एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन गोइंग टुवर्ड्स L&D इंडस्ट्री, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू बी लर्न। सो ये दोनों का अगर आप Yeah, जवाब। to learn is the essential requirement. I'll stop there. पहला सवाल क्या था तुम्हारा इब्राहिम? पहला सवाल ये था कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और टाइपिंग मास्टर हूँ, हाउ कैन आई ग्रो माय बिजनेस। यार, everything is graphics and there are such poor graphics around. Have you ever opened a government website? Have you, and not to say all of them, but most of them. इतना काम है यार, इतना काम है। लोकल बिजनेसेस के पास जाओ, उन्होंने 30,000 का डिजाइनर बिठाया हुआ होता है, जिंदगी भर उससे तो मैं तो इन सवालों के अब मुझे जवाब बहुत इसी बात पे आके खत्म हो जाते हैं कि यार सवाल ये कि तुम कितना पानी डालोगे इस स्किल में, तुम कितना इसको ऑनर करोगे और तुम इसको कितनी जगहों पे लेके जाओगे। बेचने की फिक्र छोड़ दो। कोई ये कहते हैं ना लोग कि मैंने बेच दिया, कोई नहीं बेचता, लोग खरीदते हैं। और इब्राहिम आपको ये बता सकता है कि बेचने वाले को नहीं पता होता, कस में नहीं पता होता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को नहीं पता होता। और एट टाइम्स इब्राहिम, जहाँ बिका हुआ होता है नहीं बिकता, और जहाँ नहीं बिका हुआ होता हमें लग रहा होता है नहीं होता, हो जाता है। सो आपको मुझे क्या करने की जरूरत है? आपको मुझे काम करने की जरूरत है, और अच्छा काम करने की जरूरत है। आप ग्राफिक डिजाइन करते हैं, इसको अप करें। दुनिया भर के कल्चर्स के डिजाइन देखो। मैं यूरोप जाता हूँ तो मेरा डिजाइन सेंस चेंज हो गया, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग करता हूँ, क्योंकि यूरोप इतना क्लीन एस्थेटिक देता है। इतने डिफरेंट कलर्स वो यूज करते हैं इब्राहिम, विच यू डोंट जनरली सी अदर कंट्रीज यूजिंग, राइट? देन play with typographies, play with different design forms. I've seen designs एक ही अंदाज में, तो वो बस उसका वही जॉनरा So तो I वही think चलाए where जा if रहा है। we can summarize it to upgrade your skills, observe and see what are some best practices, try to incorporate them. So and then generate some business and see what skills you lack. Even it can be a selling skill जो कि आपको नहीं आता, how to make a sales, learn that and promote or grow your business. कुछ I questions। mean more than that, इब्राहिम, I don't mean just this. देखो, ये जवाब तुम्हारा सही है, ये किसी पे भी अप्लाई करता है, लेकिन ग्राफिक डिजाइन है ना, ये आर्ट है, राइट? इसके अंदर तुम्हारा आर्ट निकलना चाहिए, तुम्हारा एक्सप्रेशन निकलना चाहिए, तब तुम छाओगे। वैसे तो हर चीज में निकलता है, लेकिन इसमें तो खास तौर पे। इसलिए जो है, अपने आप को अवेयरनेस दो, एक्सपोजर दो, बहुत सारे डिजाइन सीखो, ताकि जब तुम्हारे पास अब नया ख्याल आए, चैलेंज आए, तो तुम जो बनाओगे ना, वो इतने जावियों से आएगा कि तू फाइवर पे भी छा जाएगा, तू पाकिस्तान में भी छा जाएगा। लेकिन Yeah. वो, ओके, डन, गो ऑन। So there is this question from Ahmed Kamal, वो ये कहते हैं because of financial economic crisis companies downsizing की तरफ जा रही हैं, पेंडेमिक सिचुएशन है, सो लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनकी जॉब खत्म ना हो जाए। सो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर सच पीपल हु आर ईदर वर्किंग इन सच एनवायरनमेंट। अगर जॉब खत्म हो जाए, and what if that's the best thing that happened? I want you to please open up to that possibility, क्योंकि जॉब्स तो खत्म होंगी, इदारे भी रीसाइज करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, और बहुत सारे स्टार्टअप्स आने वाले दिनों में बहुत सारी बड़ी कंपनियों का पत्ता बिठा देंगे। सो योर स्किल इज योर सिक्योरिटी, रिमेंबर दैट। योर स्किल इज योर सिक्योरिटी। अगर आप स्किल्ड हैं, तो आपको किसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कोई ना कहीं फिट आ जाएंगे, कोई ना कोई काम कर लेंगे, फ्रीलांस कर लेंगे, काम नहीं मिलेगा, जॉब कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर लेंगे। स्किल स्किल्स आज के दौर में कुछ ऐसी हैं जो कि इदारों में है ही नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे लोगों ने ग्रेजुएट नहीं किया था, उस वक्त वो मौजूद नहीं थी। और ये अलाउ करता है सैयद मोहम्मद दानियाल कि अगर आप वो चीजें सीख लें, वो स्किल सीख लें, तो बड़े से बड़े इदारे यंग से यंग लोगों को हायर करने के लिए तैयार हैं, और इब्राहिम लैटरली हायर करने के लिए तैयार है। सो एग्रीड। स्किल इज द way ahead, and that is what will really help you protect yourself. Number two, जो चीज बंद हो रही हो, जब जॉब जा रही हो, तो फौरन से उस तरफ देखें जो दरवाजे खुल रहे हो। दिमाग ये नेचुरली नहीं करता, हम फंस जाते हैं ना, हमें बहुत अजीज होता है, मैं भी फंस गया, साल फंसा रहा, है ये दरवाजा क्यों बंद हुआ, है ये दरवाजा क्यों बंद हुआ।
मेरे पीछे हवेलियां खुली हुई थी। ये हेलन किलर की बात है कि हम स्टक हो जाते हैं। सो यार जॉब बहुत छोटी चीज है, तुम्हारा माबूद बहुत बड़ा है, तुम्हारा बनाने वाला बहुत बड़ा है। तुमने जिंदगी में जॉब करनी है, जॉब जिंदगी नहीं है। चली जाए तो क्या टेंशन है यार, दूसरी ढूंढ लेगा तू। लेकिन जो तेरा है ना वो नहीं जाएगा, जो मिलना है वो मिल के रहेगा। इस ईमान के साथ निकलो, लेकिन एक भी दिन घर नहीं बैठना। जॉब चली जाए ना तो अगले दिन निकल जाना उस गली में जहाँ 5 कंपनियां हो और मुलाकातें शुरू कर देना। फिर अगले दिन यही करना, फिर अगले दिन यही करना। फिर तुम 20 दिन बाद लोग तुम्हें आके कहेंगे मौजूदा हो गया दानियाल, तुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई। तो तू उनको बताइयो कि मौजूदा हो गया, मैंने नहीं किया, मौजूदा वो करता है। मैंने अपनी मेहनत पूरी की थी। I did my job. So that's what my recommendation would be. I'm being very realistic. Jobs will go. I'm being very realistic. Skills we need to upgrade and upgrade constantly. And lastly, we need to learn to look into directions that we don't see generally, because that's where the new opportunities are coming out. Right, so we have a lot of questions. I'm really sorry everyone, हम शायद सारी चीजें ऐड नहीं कर सकेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि हम एक आखिरी क्वेश्चन अगेन मैं क्लब करके उमर आपसे पूछ लेता हूँ। हमने एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे बात कर ली, कल्चर पे बात कर ली। सो यहाँ पे एक सवाल हमारे पास ये था कि जो LMS पे ट्रेनिंग्स होती हैं उसको लेस, या वर्चुअल जो ट्रेनिंग्स हैं उनको लेस रोबोटिक हम कैसे बना सकते हैं, सो वो ट्रेनिंग्स इंगेजिंग कैसे हो सकती हैं, एक। दूसरा, हाउ कैन वी बी ए परसुएसिव पर्सन जो कि who can convince people, clients, अगर उनको एक बात समझ नहीं आ रही तो आप how can they be better communicator? And I think Yeah. they probably go side by side, so that can you can answer both. Yeah, so LMS पे my observations and comments have always been ये नहीं चलेगा, ये इसमें ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लोग सिर्फ साफ सुथरी चीज नहीं चाहते। 100 ऐसी बड़ी लाइब्रेरियां देखी हैं इब्राहिम हमने बचपन में। कितनी खूबसूरत होती थी लाइब्रेरी यार। इट हैड शेक्सपियर, इट हैड गालिब, but nobody went there. And that's the case with a lot of LMS as well. So what needs to be done? A, इसको पॉलिसी लेवल पे वैल्यू करने की जरूरत है, और जो ये लर्निंग पोर्टल्स हैं उस पे सिर्फ 10 मॉड्यूल्स के अलावा एक्सपीरियंस बनाने की जरूरत है यार। कम्युनिटी बनाएं, लोग बातचीत कर सकें। उस पोर्टल के ऊपर नजर आ रहा हो कौन आजकल क्या सीख रहा है, लोग एक दूसरे से सवाल पूछ सकें, अपने मटेरियल शेयर कर सकें। एंगेजमेंट का बहुत अच्छा तरीका है। मॉड्यूल पे आए, ट्रेनर हर जगह अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कहीं कहानी से इब्तिदा करें, कहीं सवाल फेंकें, कई लोगों को केस स्टडी पे लगाएं, कहीं उनको वीडियो दिखाएं। यानी कि जो आपके पास 8 से 10 लर्निंग टूल्स है ना इब्राहिम, ऑल Yeah. ट्रेनर्स नो देम राइट, इनको असॉर्टमेंट में यूज करें, ताकि आपकी हर वीडियो जो है उस मॉड्यूल की एक अलग अप्रोच से उस पैगाम को दे रही है, तो वो बोरिंग नहीं होता। तीसरा, डिजिटल में इब्राहिम लोग टेस्ट कर सकते हैं बार बार, राइट? तो मॉड्यूल कराएं, क्विकली टेस्ट करें, ठक रिजल्ट आ गए, लीडर बोर्ड आ गए। और इसको आसान जानने का तरीका है कि जो आप गेम आपको पसंद है ना, वो गेम खोलें और सोचें इस गेम में क्या क्या होता है मेरे लिए ये मुझे कैसे एंगेज रखता है, और कोशिश करें कि उसको आप अपने लर्निंग पोर्टल का और अपने मॉड्यूल्स का हिस्सा बनाएं, यानी उसको गेमिफाई कर दें। आपका दूसरा सवाल क्या था, द लास्ट वन? How to be more persuasive speaker, चाहे आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, वैसे जनरली या how to be more I have rarely persuasive. seen somebody who didn't believe in their idea sell their idea. And even if they did, they never succeeded in building a great company around it. For me, conviction is the name of the game. जिस चीज पे मुझे यकीन था ना इब्राहिम, मैंने मजमूए को यकीन दिला दिया। हमें अपने आइडिया पे, हमें अपने प्लान पे, ज्यादातर स्टार्टअप्स जो मैंने प्रेजेंटेशन देते हुए जो मुझे अच्छे नहीं लगे, वो इस वजह से नहीं लगे या उन्होंने मुझे इम्पैक्ट नहीं किया क्योंकि वो जब बोल रहा था तो वो खुद ही उसको ओन नहीं कर रहा था। उसके लिए इमोशन देखें, लेवल फास्ट यू में, नो, टोन में। जब जब स्टीव जॉब्स आईफोन उठाते थे ना तो वो खुद अशश कर रहे होते थे आपको अपने पैगाम, अपने ख्याल पे इतनी कन्विक्शन पे आना है, तो वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस करेगा दूसरों पे। अगर आपको हिला रहा है ना, कोई कहानी अगर ट्रेनिंग में मेरे रोंगटे खड़े करती है ना, तो हॉल तो उस पर रो पड़ता है। दैट इज इम्पैक्ट, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जो मैंने पहले जो आपको टिप्स बताई, लोगों का नाम जाने, उनके पास प्रेजेंस दिखाएं, इंटरेस्ट लें, जब वो बात कर रहे हैं अपनी छोड़ें, लिसनिंग पे काम करें और फॉलो अप्स करें।
ये 5 एडवाइस जो है ना, ये डेल कार्नेगी की बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और मुझे लगता है कि अगर आप वो पढ़े एज अ यंग पर्सन, तो आपकी बहुत सारे बहस मुबाहिसे खत्म हो जाएंगे, आप बहुत लविंग हो जाएंगे और लोग आपसे बहुत ज्यादा दोस्तियां करना चाहेंगे। हाउ टू विन Agree. फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल अपने मौजू पे लिखी हुई वाहिद ही किताब है वैसे। इट्स अ वेरी I यूनिक बुक लाइक agree. दैट। So we have last 2 minutes, Umair, 90 seconds, quickly concluding thoughts, any message, any comment, anything that you think you might have missed if you want to share quickly. Yeah, I've been a motivational, popular as a motivational speaker. So hi, people positive, keep it up, do this, yeah, whoa. And now I say that life is this. It's the dips. It's the dips that teach us. It's the dips that test us. It's the dips that make us realize the worth and the value of the real things. तो ये जो जिंदगी आजकल सिंगल डायमेंशन पे आने की कोशिश कर रही है लोगों की थॉट्स में, आपको हर वक्त खुश, आप हर नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसमें तवाजुन जरूरी है। सो गुड के साथ बैड है, डे के साथ नाइट है, पीस के साथ वॉर है, क्राइसिस के साथ अपॉर्चुनिटीज हैं। ये कुदरत ने यही निजाम सेट किया है। इसी तरह अच्छाई और बुराई, डेविल इनसाइड अस एंड द शर्फ इनसाइड अस। इब्राहिम, मैं शैतान हो सकता हूँ और मैं अपने हाथों से उसकी रजा और उसका अमल हो सकता हूँ। Which one do you want to be? I've always wished and I've always prayed कि हम सारे काम करें, दुनिया घूमे, चीजें करें, और उन तमाम चीजों में हम ये जो हायर सेंस है अपना, जो हमारा शर्फ है, इसको ना लूज करें। That is very important. Right. Thank you very much, Umair, for your time despite your busy schedule. But I Thank think I can you. always take that liberty. Now you have to rush. Thank you, everyone who joined us. It was lovely having you. Your comments. I'm sorry I couldn't ask some of your questions, but that's okay. You can see the recording, and I hope आप उस पे comment कर दीजिएगा. If Umair you ever get a chance, so हमारे page पे जाके इसके नीचे आप देख लीजिएगा. If there are any questions and you have time and you can reply, that would be really nice. Once Sure. again, thank you very much. All the best for your session. Thank you. Thank you. Lovely being with you guys. Take care, everybody.